Hi everyone, welcome back to our channel Weekend Vibes with Vibes. पता नहीं क्या क्या बोल रहा है भैया क्या क्या बोल रहा है इतना रिव्यू सेइंग बाय टू वीकेंड वाइब्स विद अस। इस गाड़ी ने हमें बहुत घुमाया है हमारी हरियर। Hi everyone, welcome back to our channel Weekend Vibes with us. And today we are doing a long-term review of our own Tata Harrier. So this Tata Harrier was with us from last 3 years. तो इसको हमने परचेस किया था 2022 में 2022 जनवरी एंड दिस इज XZ A Plus ऑटोमेटिक टॉप मॉडल और इसका we purchased it from Dehradun as you can see UK07. अब long term review में first if we start with the cost was around 2370 or 80 around that. At that time the road tax was similar to 2.5 and I decided to get this from Dehradun क्योंकि यहाँ पे road tax कम था and finally I am selling it off in Dehradun. So that was also a point we will get a good amount for something we are selling in the same state. Now coming on to the vehicle, this is 2 liter engine and I was first going with Nexon जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ अपडेट्स इन दैट व्हीकल। उसके बाद मैंने जब वो लिया उसका टेस्ट ड्राइव लिया तो आई वाज नॉट दैट इम्प्रेस्ड। द पावर वाज ओके, द स्पेस वाज आल्सो ओके, बट क्योंकि हैरियर इज अ सेगमेंट ऑफ व्हीकल, 2 liter इंजन है और इट्स लाइक ऑल टुगेदर a different higher segment vehicle. So before this, I had taken test drive for Creta. Creta का भी 1.5 liter engine है, but it's better than Nexon क्योंकि Creta में space ज़्यादा है. But this is a segment above Creta. So coming to the features and the things I like about Tata Harrier is एक तो power. Definitely, if you come to two liter engine, the power of the vehicle is lot better. तो जैसे ही मैं Nexon I stepped out of Nexon came to Harrier, मेरा point of view changed and I thought I cannot go with Nexon. चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। So I thought of my finances, yeah, I have to take how much loan and all. But that time I got a very good deal on the vehicle as well as on the loan. We both drove this vehicle from Dehradun to Bangalore. Stops were a lot of trips up and down. To and fro. Pehla stop was 1,000 kilometers. After driving it for 1,000 kilometers, I realized a lot of plus points. But yeah, there are few things which you have to live with heavier. And one of it is, its steering. Steering is a bit heavier in traffic, but on highways it gives you a lot of confidence. So, yeah. देखो मेरी तो पहली गाड़ी है ये, वो भी उधार की गाड़ी है उत्कर्ष शुक्ला की। कुछ भी तो पहले आई वाज स्कैर्ड, ट्रक्स वगैरह पास होते थे साइड से तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी कि कितना डिस्टेंस मुझे मेंटेन करना है। बट या विद टाइम स्मूथ हुआ, मेरा भी हाथ स्मूथ हुआ ऑन ड्राइविंग दिस। एंड अभी जब हाइड्रोलिक फ्लूइड इसका चेंज हुआ है देन द स्टीयरिंग हैज बिकम मोर लाइटर, so nothing like that. Or and it gives you a kind of confidence when you're driving such kind of SUV. So you feel confident, you feel safe. Okay. Coming on to after sales, that is very important. कि after sales में क्या, what are the plus and minus of after sales? तो
as we know, Tata का after sales उतना अच्छा नहीं है. Service experience is not that great. So I would rate around 3 out of 5 to Tata on the after sales and services. Why? Because there have been some niggles from the start itself in the car. पहला था कि there was a drag when you are driving. When you are driving on highway, there was a drag towards left, and that was in all the vehicles, not only my vehicle. सारे टाटा के SUVs में ये दिक्कत थी. So when I went for the first service, they told it's a universal issue and we cannot sort it out because we don't have any fix for this. Okay. Then in second service, I asked him, did you get a solution? He told no, I could not get it because there is, I mean, all the vehicles are facing this issue. So in the third service, when I went to that guy, ये हुआ कि उसने मुझे बोला कि I have the fix now and I'll fix it after the major service. I'll take one extra day. I mean, the next day he'll give it to me, and he fixed it very nicely. Now there is no pulling, left pulling, which is like कि आपकी गाड़ी left में drag हो रही है. You just put your hands comfortably and it will go in a straight line. So that was one of the things which was sorted in the third service, major service. That was 3 years experience after 3 years, and now it's really good. ऐसा कोई drag का issue नहीं है. But there are few dealers and service center locations who are like supportive, and they will fix it even after you come back after a service. They will definitely fix it. So I would like to mention MM Motors in Bangalore, from where I am getting my car service from last 2 times. This was the third time, I believe. The minor service I did it from somewhere else, and which was very horrible experience. And yeah, and rest things are, you all would have seen in our videos. We have faced no issues at all. Everything is fine. The ride quality and all those things we'll discuss in our drive with our new owner, who will be joining us in a bit, and we will discuss it. न्यू ओनर एकदम कैमरामैन की तरह. चलो मैं चलाता हूँ. जो पास्ट ओनर बैठे हैं और जो फ्यूचर ओनर है, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट हो गए. उनको हमने पैसा जो है वो काफी दे दिया है इसका. तो पैसा दे दिया, ठीक है. काम की बात करते हैं. तो आपने गाड़ी ये ली थी 2022 में. हाँ. तो स्टार्टिंग फ्रॉम आपका क्या बोलेंगे, गाड़ी ऑन फर्स्ट साइट आपको क्यों पसंद आई है गाड़ी, ये बताइए. देखिए, बाकी तो मैंने सब बता दिया है गाड़ी के बारे में कैसा क्या है. मैं पहले इसमें हम क्योंकि गाड़ी अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो आई विल टॉक अबाउट ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई लाइक अबाउट दिस कार व्हाइल ड्राइविंग. डिसलाइक ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं डर जाएंगे आप. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो ड्राइव व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कार इज कि आपको एक तो सीटिंग कमांडिंग पोजीशन मिलती है. इवन दो मैं आई लाइक टू कीप माई सीट एज लो एज पॉसिबल, एज अ लाउंज सीट. लाउंज सीट, क्योंकि लंबी ड्राइविंग में इट्स कंफर्टेबल इफ यू आर सीटेड लो. देन सेकंड थिंग इज ड्राइविंग पोजीशन करने के बाद आपका जो ऑटोमेटिक इसका गियर बॉक्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, दैट इज वेरी गुड. क्योंकि मैंने नेक्सॉन देखी ड्राइव करके, और फिर उसके बाद मैंने टाटा हैरियर देखी थी. तो नेक्सॉन में आपका जो EMT गियर बॉक्स है, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, खासकर हिल्स में. जब आप, जैसे हम अभी हिल्स में ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपकी गाड़ी बिना लैग खाए एक क्विक ओवरटेक कर सके, देन इट इज लाइक एक अलग एक्सपीरियंस होता है. क्योंकि आप आपको जिस टाइम पे पावर चाहिए उस टाइम पे ये पावर डिलीवर करती है. खासकर सिटी मोड में भी यू नेवर फील लाइक देयर कुछ पावर कम है. तो दैट थिंग इज गुड. और उसके बाद स्पोर्ट्स मोड तो मैं बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स मोड में कम ही चलाइएगा, क्योंकि रॉकेट बन जाती है गाड़ी एकदम सुई. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो कंट्रोल हो पाए ना हो पाए. उसके बाद एवरेज की बात करें गाड़ी की, तो एवरेज में अगर हम सिटी एवरेज ले लें इन दीज कंडीशंस, तो 10 से 11, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन दैट. और 10 से 11 में अगर आप चलाओगे तो एक फुल टैंक आपका 400 से 450 किलोमीटर तक चलेगा, राइट.
उसके बाद अगर आपकी ड्राइविंग ऐसी है कि यू आर गोइंग थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा हाईवे पैच मिल रहा है ये वो, तो यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 12-13। बट मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि अभी जो 2024-25 मॉडल आ रहा है हैरियर का, जो मेजर उन्होंने चेंज करा है दैट इज उन्होंने इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग दे दिया है इसमें। अब उनका क्या रीजन रहा है कि कस्टमर्स को कुछ इशू रहता था, जैसे कि मैं चला रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम हाइड्रोलिक चला रहा हूँ स्टीयरिंग, मुझे भी हल्का डिफरेंस लग रहा है। तो हाँ, तो मैं इसका 2 पार्ट में दूंगा क्वेश्चन का आंसर। पहला पार्ट है कि पीपल कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, राइट, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, उनको डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक को आप अगर पावर ऑन में आप एक उंगली से घुमा सकते हो, मगर हाइड्रोलिक में क्या होता है, हाइड्रोलिक में आपकी गाड़ी जैसे ही मोशन में आती है, मान लीजिए कि 10 to 15 किलोमीटर पर आवर की बस मोशन में आ गई, उसके बाद आपको उतना अंतर नहीं आएगा, आता है डेफिनेटली आता है, बट हाइड्रोलिक में यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। आपका हाईवेज पे अच्छा कॉन्फिडेंस है जो कि यू वुड हैव फेल्ट जब चलाई थी हाईवे पे, तो वो एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब मैंने ये गाड़ी ली थी उस टाइम से लेकर अभी तक इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स। तो जब 3rd सर्विस अभी हुई है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये इसकी स्टीयरिंग का पूरा हाइड्रोलिक फ्लूइड चेंज करते हैं एंड दे डू अ रिकैलिब्रेशन एवरीथिंग। तो उसके बाद से मुझे इसका स्टीयरिंग ऑलमोस्ट 20% लाइटर लगा है। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ जो हाइड्रोलिक फ्लूइड कंज्यूम होता है ना धीरे धीरे, तो वो कम भी होता है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा स्टिफ रहता है। बट I think it is better after the last major service. आप देख सकते हैं हम हिल्स में आते हैं, people are like कि भाई अपने बच्चे को, this is same Harrier, और अपने बच्चे को खड़ा कर दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? Now you never know in emergency situations कि आप कब ब्रेकिंग करोगे, आप कब आगे से कोई आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ऊपर से पेड़ आ जाए, यू डोंट नो कोई डाल निकली है, राइट? तो दिस इज वेरी 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 रियली फुलिश ऑफ पीपल डूइंग दिस स्टफ। और ये सेम सीरीज का है FB। एंड द थिंग इज कि इंडिया में मोस्टली जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो सनरूफ दे रहे हैं गाड़ियों में, वो सी आई फील कि सनरूफ्स जो हैं वो जर्मन कार से इंस्पायर्ड है, जो कोल्डर रीजन्स हैं, एक्चुअली जहाँ पे सन रिक्वायर्ड होता है कि आप बैठ रहे हो, आप अपनी सनरूफ खोल लो, आप थोड़ा सन एब्सॉर्ब कर लो। बट इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो 90% सनरूफ लेते हैं कि टशन दिखा लें, छपरीबाजी कर लें, सर मुंडी बाहर निकाल लें। जो एक एक्सीडेंट हुआ था देहरादून में, उसको याद करें तो उसमें बहुत ही ग्रूसम केस हुआ था वो। उसमें यही था कि उसमें 2 ऑक्यूपेंट्स सब बाहर निकले हुए थे एंड उनका they could not even stitch the bodies Exactly. together, ऐसी हालत हो गई थी। तो एडवाइजेबल यही है कि भले ही आप सनरूफ वाली गाड़ी लें, बट प्लीज डोंट यूज इट वाइजली। Exactly. इन विंटर्स केवल आप ये शेड खोल लें, नहीं आप ये भी खोलना है फॉर एयर, अच्छा लगता है, वेंटिलेशन अच्छा होता है। बट कभी भी मूविंग गाड़ी में आप बाहर ना निकले प्लीज। सनरूफ ऑपरेट करने के सब अलग अलग है। अब दिस इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव टू पीपल कि भाई इसको एक बटन में करो या अलग अलग, बट इससे केवल सन ब्लाइंड्स आप कितना भी परसेंटेज खोल सकते हो। इससे आप टिल्ट खोल सकते हो कि आप टिल्ट यहाँ से ऊपर हो जाती है फॉर एयर इनटेक। इससे आपका जो सनरूफ है दैट विल गो बैक, और एक बार आप दबाओगे तो वो चलते जाएगी, और आपको स्टॉप करना है तो वहीं पे आप रोक दो उसको जितना खोलना है। तो दिस इज काइंड ऑफ वेरी इजी। बहुत सारी कार्स में एक ही बटन होता है टू ऑपरेट ऑल द थ्री। हाँ, तो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि ऐसे कर रहे हैं, फिर रोक रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, उतने में दूसरा खुल जा रहा है। तो फीचर्स आते हैं, एक तो हिल डिसेंट और एक हिल होल्ड। तो हिल डिसेंट इज समथिंग लाइक कि आपकी कोई खड़ी चढ़ाई है और आप उतार रहे हैं नीचे, तो यू कैन पुट इट ऑन दिस हिल होल्ड और हिल डिसेंट। और 8 से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी अपने आप इंजन ब्रेकिंग करते हुए नीचे उतरेगी। यू डोंट हैव टू टच ब्रेक्स। अब जैसे हिल होल्ड है, ये ब्रेक लगाई है, हाँ ब्रेक लगाई है, तो गाड़ी रुकी हुई है, मैंने एक्सीलेटर और ब्रेक कुछ नहीं प्रेस करा, 3 सेकंड बाद पीछे जाती है हल्की हल्की। हाँ, और फिर आप एक्सीलेटर दे दो तो इट वोंट गो बैक। और ऑटोमेटिक में दिक्कत नहीं होती है, खासकर इट्स टॉर्क कन्वर्टर। तो
टॉर्क कन्वर्टर में देयर इज नो इश्यूज इन हिल क्लाइंबिंग, हिल में चलाने में, तो इट्स अ गुड गियर बॉक्स ऑल टुगेदर. इट्स अ 6-speed Hyundai Source गियर बॉक्स, और इसका ट्यूनिंग बहुत अच्छे से किया है टाटा ने विद इट्स 2 लीटर इंजन. इट्स अ गुड इंजन, क्योंकि जैसे स्विफ्ट का Fiat इंजन है, सिमिलरली आई वाज 1.5, अच्छा 1.2, हाँ. वैसे ही ये भी Fiat का 2 लीटर है. एंड दिस इज टॉप इन देयर टॉप क्लास इंजन, उनका बेस्ट इंजन है Fiat वालों यही का. सेम इंजन है MG हेक्टर में आता है, बट ऑटोमेटिक नहीं देते हैं वो लोग इसमें, वो मैनुअल देते हैं सिर्फ. राइट. और जीप कंपस में सेम इंजन आता है जो थोड़ा सा अप ट्यून करा हुआ है, जैसे एंड इट इज आल्सो 4x4 ना. इट इज आल्सो 4x4. वन ऑफ द गुड थिंग्स, जब से टाटा ने अपनी डिजाइन लैंग्वेज रीडिफाइन करी है आफ्टर एक्वायरिंग लैंड रोवर JLR, इज दे हैव इम्प्रूव्ड इन देयर क्वालिटी ऑफ इंटीरियर्स. अगर आप टाटा की पुरानी गाड़ियां देखोगे, इवन अल्ट्रोज में भी ये दिक्कत है कि 1-2 साल बाद बजने लगती है, राइट? उसमें भी थी तो टियागो में, कि थोड़ा बहुत कहीं से रैटल और ये सब आने लगता है. इसमें भी आई हैव फेस्ड वन प्रॉब्लम जो मैंने इसको बताई थी, कि डोर से क्रीकिंग नॉइज आ रही थी 2 साल बाद, और वो क्रीकिंग नॉइज इतनी इरिटेटिंग थी कि जब मैं चलाता हूँ गाड़ी तो केवल मुझे आएगी, नो वन पैसेंजर्स में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो नॉइज आ रही है. तो उसको मैंने एक बार दिया सर्विसिंग पे, उसने बोला हाँ मैं ठीक कर दूंगा, दे डिड समथिंग, और बोला कि सर चली गई है देख लो. अब क्योंकि वो वॉइस थोड़ी स्पीड पे जाके या थोड़े गड़बड़ रास्ते पे आती थी तो हो गया वो. उसके बाद मैं वापस उस सर्विस सेंटर पे गया टाटा के, एंड दे वर एक्चुअली दैट सर्विस सेंटर वाज गुड. मैं आपको, और वो बैंगलोर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे टाटा का वो जो सर्विस सेंटर है, दे पर्सनली गिव यू दैट अटेंशन कि हाँ दे विल लिसन टू यू. और वो ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस कराई और आप उसके पास वापस गए तो दे विल टेल कि आपको फिर से बुक करना पड़ेगा. नहीं, दे विल लुक इनटू इट, दे विल गिव टाइम एंड दे विल रिजॉल्व द इशू. तो सेकंड टाइम में उसने ही केम विथ मी विथ हिज अप्लायंसेस, जो भी ठोकने ठाकने एंड व्हाटएवर हैमर एंड ऑल, उसने गाड़ी चलवाई, बैक पैचेस पे चलवाई, और वहीं रुक के उसने उसको करा फिक्स, और फिर चलवाई और फिर फिक्स करा, और सेकंड टाइम में जाके आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ द इशू इज रिजॉल्व. एंड दैट वाज वन ऑफ माय एक्सपीरियंस कि भाई दे डिड दैट. और अभी तक पूरी गाड़ी में टच वुड कोई रैटलिंग नहीं है, अनलेस आप कुछ डोर पॉकेट में डाल दो जो स्वाति का रहता है हमेशा, कुट कुछ भी क्रीम पाउडर ये सब चीजें. चल झूठा. लगाटो की आपको बोतल. क्या कहना है इस पे? हाँ, हाँ, कुछ नहीं. कुछ नहीं, कुछ तो बोलो. नेसेसिटी है ना पानी की बोतल, अब क्या करें. हाँ, पानी की बोतल रखनी प्लास्टिक पड़ेगी. में, प्लास्टिक यू कैन नॉट कैरी, ग्लास कैरी कर रहे हो तो फिर उसके ऊपर कुछ क्लॉथ कवर लगा के कवर करो. हाँ, ट्रैवल करो ताकि वो तुम्हें नॉइस ना आए. हाँ मतलब सही है. और तो हाउ वाज स्वाति योर एक्सपीरियंस एज अ co-driver and also as a driver, but co-driver and passenger, rear passenger. ड्राइवर वाला मैं बाद में बताऊंगी. अभी तो मैं पीछे बैठी हूँ, तो मैं पीछे एज अ पैसेंजर बता सकती हूँ कि 3 people can accommodate very easily, very easily. अगर ये हैंड रेस्ट आप पीछे कर लो तो बहुत आसानी से there's ample space for 3 people to accommodate, और ample leg space है, अच्छा thigh support है for parents, and we are 5'5", तो हमारे लिए तो ठीक है, but we can also show you with these guys who are around 5'9" है, 5'8", कि इनका कितना हेडरूम मिलता है. 5'8", we are 6. गजब बेइज्जती है. मैं 6 हूँ, he is 5'10". Are you sure? Yeah, he is 5'10", I am 6. Yes. इतने साल हो गए शादी को, तो हाइट नहीं पता अपने पति की. अब ये देख लो, शादी ये भी हो गया कि हाइट पता ही नहीं है कि अब मेरा पति कितना लंबा है. और यहाँ बेइज्जती कराएगी कहीं जाके 5'8", 5'9" बोलेगी, और मैं रहूंगा नहीं तो लोग बोलेंगे ठीक से शादी कर लेगी. है ना. तो हाँ, तो आप देख ही सकते हो कि जैसे मैं अभी बैठा हूँ,
दिस इज आई एम 6 feet एंड आई एम कंफर्टेबली सीटेड. उसके बाद भी एक पीछे पैसेंजर 6 feet और मे बी लेस कैन सिट वेरी कंफर्टेबली, लीविंग ऑलमोस्ट 4 to 5 inch of space in front of the seat. तो that is a good thing and especially in long journeys बहुत अच्छा रहता है जब आपके पास ample room. तो ये बैठे हैं तारिश. तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'10" और लेग रूम ठीक है तुम्हारा? जबकि आगे भी इसको बिठा लेते हैं. शुक्ली तुम बैठो आगे, 2 मिनट बैठ के दिखाओ ना. मतलब 6'6" ऑलमोस्ट मम्मी. तुम्हारे पास इतना लेग रूम है, तारिश के पास भी इनफ लेग रूम था पीछे. सो आई एम अ टाटा ओनर. उत्कर्ष से भी 4 महीने पहले से मेरे पास एक छोटी गाड़ी थी टियागो जो काफी अच्छी रही है. एंड मेरा रीजन उसको खरीदने का काफी रिसर्च के बाद यही रहा था दैट इट हैड गुड बिल्ड क्वालिटी. ठीक अच्छा इंजन था. आई विल नॉट कंपेयर इट विद स्विफ्ट और अदर गाड़ियों का, बट इट वाज गुड एनफ. एंड दिस इज माय सेकंड टाटा कार. टाटा हैज ह्यूज पोटेंशियल टू एमर्ज as one of the biggest automobile companies in the world. लेकिन टाटा क्या करता है, टाटा प्रोडक्ट्स अच्छे निकालता है, बट थोड़ी टाटा को ना और इंजीनियरिंग करने की जरूरत है. जैसे अभी भी आप देखोगे, मैं इस हैरियर में भी बता सकता हूँ, इसमें भी पैनल गैप्स बहुत कंसिस्टेंट है. मतलब आप देखोगे कहीं लाइट, जो टेल लाइट है और जो बूट है वो अनइवन दिखेगी आपको बहुत जगह से. तो टाटा नीड टू एड्रेस दीज इशू. एंड अदरवाइज आई विल से दूसरा इशू इसका रहता है थोड़ा सर्विस सेंटर्स का. बट देन आई विल नॉट से कि सारे सर्विस सेंटर्स खराब हैं. नाम खराब इसलिए क्योंकि मोस्टली लोगों को सर्विस सेंटर्स ठीक नहीं मिलते हैं. आई हैव हर्ड माय फ्रेंड्स जिनके पास और कंपनीज की गाड़ियां हैं, इवन उनके एक्सपीरियंसेस भी खराब रहते हैं. बट क्या होता है कि टाटा इज एन इंडियन कंपनी, कहीं ना कहीं लोग इसको ज्यादा ही बुरा भला कह देते हैं. मेरे को सो फार, मैं दून टाटा से गाड़ी ली थी, ये भी दून टाटा की है, उन्हीं का सर्विस सेंटर है which is so far which has been good. हम लोग अपने हैरियर से थोड़ा सा हिल टेरेन पे आ गए हैं, प्रॉपर हिल्स, मसूरी के हिल्स पे. और ड्राइवर सेम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस. कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया. ठीक चल रही है? चल रहा है, कोई कंप्लेन तो नहीं है भाई? अब कंप्लेन हो तो मेरे को नहीं पता भाई, तू जान, तेरे ही गाड़ी जाना है. मैं पास में था तो मैं अभी कर दूं. यहाँ से थोड़ा सा रास्ता पतला है एज कम्पेयर टू द मेन रोड. दिस इज कौन सा रोड है? किमाड़ी रोड. किमाड़ी मसूरी रोड, और सामने से आपको मसूरी दिख सकता है. वो देहरादून है. सॉरी, सामने से आपको देहरादून दिख रहा होगा. इट्स गुड, ब्यूटीफुल, क्लियर वेदर. डिस्टेंस कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया. यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर पे वो लॉक हो गई है स्पीड. 8 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड लॉक हो गई है. थोड़ा सा स्टीप है जस्ट फॉर टेस्टिंग, क्योंकि मुझे टेस्ट करके देनी है ना सारी चीजें. तो आई एम जस्ट गिविंग अ डेमो ऑफ ऑल द फीचर्स इन आवर कार. So you are not putting. तो कोई ब्रेक नहीं, कोई एक्सेलरेटर नहीं. आप देख लो यहाँ पे ब्रेक और एक्सेलरेटर से काम हट चुका है, और गाड़ी अपने इंजन ब्रेकिंग पे चल रही है, जो कि अब हो गया काम. बट स्टिल टू शो द फीचर, इंजन से ब्रेक. एंड फाइनल हैंडओवर. Meet the new owners. ये हो गया है गाड़ी की डिलीवरी क्या हम यहाँ भी होने लगे? टेक ओवर गाड़ी का. जीजू के दिल में चोट लगी. अच्छा वो तो रहता की कवर. की कवर अच्छा क्यों नहीं दिया? मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी नेक्स्ट वीडियो में करा. चलो, saying bye to weekend vibes with us. इस गाड़ी ने हमें बहुत घुमाया है, हमारी हैरियर. तो अब चेंज ऑफ गार्ड्स हो गया है. कार सेरेमनी. कार सेरेमनी हो चुकी है. अब हम लोगों ने ले ली है बैक सीट. पैसेंजर Now it will always be your car. Don't think like that. हाँ, हम लोग आएंगे वापस तो हम लोग इसी में घूमने वाले हैं.